Good evening, everyone. This particular video is connected to LLM entrance exam 2026-27. So, circular has been published by the University of Mumbai. The earlier video which I made for you all was with regards to the advertisement published by the University of Mumbai with regards to LLM CET exam. Now, this particular video is about the guidelines which you need to understand. So, दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड ऑन देयर पर्टिकुलर वेबसाइट. तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन LLM एंट्रेंस एग्जाम शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच इज अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट. यहाँ पे आपको लिंक भी दी गई है, ठीक है. एंड एडमिशन टू LLM shall be made strictly in accordance with the merit list of the center based online CET 2026 reservation policy of the government of Maharashtra and rules and regulations of University of Mumbai. ठीक है. For general category the minimum qualifying marks are 40 marks and 30 marks are for reserved category. ठीक है. यहाँ पे बाकी सारी चीजें दी गई है which is obviously the same which was there in the advertisement. तो 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2 marks each, no negative marking. Okay. After filling the online registration form, the candidate shall be directed to payment gateway. वहाँ पे आपको पेमेंट करना है. Subjects जो आप लोगों को ध्यान में रखना है which is constitutional law, jurisprudence, law of tort, law of crimes, law of contract, administrative law, human rights law, family law and company law. ठीक है. सो दीज आर द सब्जेक्ट्स फॉर LLM CET 2026. ठीक है. यहाँ पे कुछ नोट भी दिए गए हैं विथ रिगार्ड्स टू दैट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज शुड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC, SBC, DTA, NTB एंड अदर कैटेगरीज शुड सबमिट अ वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट. ठीक है. और अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो आप उसका रिसीट भी अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर कोटास दैट इज दिव्यांग, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्सेट्रा should submit their respective certificates issued by competent authority wherever applicable. Okay. After declaration of the result of center-based online exam, candidates are required to apply according to their preferences to Department of Law where they wish to take admission. List and other details is available on website. So a separate video with regards to that once the results and everything are declared will be made on our YouTube channel. Okay. Then वही सारी चीजें जो रिपीट कर रहे हैं ये कि it will be strictly made in accordance with the merit list. And second is important point, in the event of equal marks secured by the candidate in the CET exam, merit will be decided as per the marks secured in the LLB examination. And in the event of equal marks in LLB examination too, then the merit will be decided as per the marks secured in HSC or equivalent examination. तो इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड. LLM CET के अंदर आपके मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट के साथ इक्वल है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जिनका LLB एग्जामिनेशन में स्कोर ज़्यादा है. मान लीजिए कि LLB एग्जामिनेशन के अंदर भी सेम है तो आपका 12th का या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मार्क्स को देखा जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी डिसाइडेड हु विल बी गिवन प्रायोरिटी. ठीक है. अगर आपको कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए या फिर कुछ क्वेरीज है तो आप रिस्पेक्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द थिंग्स क्लियर. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज एन ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन examination with automated evaluation of the performance of the candidates. There shall be no revaluation. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. काफ़ी लोग पूछते हैं इन कंपैरिजन टू LLB CET एग्जाम कि जैसे LLB CET के अंदर ऑब्जेक्शन ट्रैकर भी रहता है एक कभी, तो इन केस इफ वी हैव एनी ऑब्जेक्शन विथ रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द मार्किंग और एनीथिंग तो वो आप कर सकते हैं कि नहीं. तो LLM के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टली रिजल्ट आता है. यू आर नॉट मेड अवेयर अबाउट आंसर की और एनी अदर थिंग. डायरेक्टली ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. सो दिव्यांग कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 minutes फॉर द एग्जामिनेशन. ओके. तो 1 hour का जो टाइम है उससे 1 hour 20 minutes का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा. करेक्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है. बिकॉज जनरल कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया बट आप बिलोंग करते हैं कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है बट आपने सिलेक्ट किया जनरल, ऐसा गलती मत करना. बिकॉज
आपका एडमिशन प्रोसेस उसी कैटेगरी के बेस पे होता है एंड द चेंज ऑफ कैटेगरी इज नॉट अलाउड. सो यू नीड टू फिल द फॉर्म वेरी प्रॉपरली सो दैट नो मिस्टेक्स आर कमिटेड ऑन योर एंड. ठीक है. And the results will be valid for this particular year only. The admission to LLM program shall not be centralized. The candidate shall be required to contact each institution independently. मतलब कि आपको उतना ध्यान रखना है कि जैसे LLB CET के अंदर आपका एक कैप प्रोसेस करके एक होता था सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, वैसे LLM के अंदर कोई कैप प्रोसेस जैसा कोई रूल नहीं होने वाला है. इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको मैं रफली बताता हूँ कि 22 से 23 कॉलेजेस है इन मुंबई जो अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से. सो इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, देयर आर अदर 21-22 कॉलेजेस व्हिच प्रोवाइड्स दिस LLM कोर्स. जो LLM CET एग्जाम देंगे, द स्कोर विच यू विल स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन विल बी यूज्ड एज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन ऑल दिस 22-23 कॉलेजेस. तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा वंस द रिजल्ट्स आर आउट. एंड बाकी जो आपका कैप प्रोसेस का क्राइटेरिया था LLB के एग्जाम के टाइम पे, वैसा यहाँ पे नहीं होगा. आपको हर एक कॉलेज के पास जाना है, मतलब हर एक कॉलेज को विजिट करना है और वहां पे आपको क्राइटेरियाज बताए जाएंगे, कौन सा फॉर्म भरना है एडमिशन का एंड ऑल, सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन की जाएगी और एल्स इट विल बी पब्लिश्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट. सो यू नीड टू फॉलो अप. LLB CET में वो कैप सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस था, मतलब एवरीथिंग हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, CET सेल का जो वेबसाइट था. बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअली हर एक कॉलेज का जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे वहां पे अप्लाई करना है, वहां के लिए आपको रेगुलर फॉलो अप या फिर इंस्टीट्यूशन के पास जाके सारी चीजें इंडिपेंडेंटली करनी होगी. सो दीज आर द गाइडलाइंस विच यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन. सो आई होप द गाइडलाइंस आर क्वाइट क्लियर. बाकी जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज पर्टिकुलरली द वेबसाइट, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. ठीक है. यहाँ पे आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यू विल हैव टू लॉग इन एंड देन यू नीड टू प्रोसीड फर्दर विथ रिगार्ड्स टू फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज क्वाइट सिंपल, बट बस आपकी जो डिटेल्स है वो आप प्रॉपरली फिल करना, उसमें कुछ गलती मत करना बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिल द फॉर्म वेरी प्रॉपरली. कैटेगरी में कोई गलती मत करना, जैसे कि वो गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है. सब्जेक्ट्स टू बी रिफर्ड फॉर द एग्जाम जो ऑलरेडी हमने गाइडलाइंस में भी डिस्कस कर लिया, बट दिस इज द सेपरेट नोटिफिकेशन, यू कैन से सर्कुलर विच इज बीइंग इशूड. तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं विथ रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन, बिकॉज आपका LLB में अगर आप 5th सेमेस्टर में है या फिर आपका 3rd लास्ट सेमेस्टर है इन शॉर्ट, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आप गो थ्रू कर चुके हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ MCQs द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. तो आपको वो पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न है कि वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एवरी टाइम. So for that you can enroll in our course that we have launched on our application for only 150 rupees, where you can give the mock test to get yourself familiar with type of questions which are asked in the LLM exam. Also the past papers are available, the notes will also be provided to you in terms of preparing for the same, so that you can prepare well with this aspect. Okay, so please take a note of this and you can enroll. The links and everything will be provided to you in the description box. So yes, thank you so much and please subscribe to our YouTube channel for further important videos with regards to LLM CET as well as LLB CET for 3 years as 5 years. Thank you.